So good morning students. As you know that today we are going to study multiplication rule, and I am very sure that you have completed your first exercise which was related to addition and subtraction. So in multiplication we are going to study some rules regarding this. So very simple rule, if I want to tell you that if you have to multiply any fraction with whole number, so the easiest way to multiply numerator with numerator, so 4 into 3, यानी कि you can write here 3 into 4 divided by 4. So numerator will multiply with each other, 3 into 4 divided by 4 and then 12 by 4, and then you can simplify this number and answer will be 3. One more method, if you want, if you will be perfect in that, then you may use in that, you can see that numerator and denominator, they are having same number, then you can cut them and then answer will be 3. See, this is possible when you have only and only multiplication sign in between them. If you have plus and minus sign in between them, you cannot follow this rule in fraction. One more thing, if you have to multiply fraction with fraction, it means 3 by 2 of 5 by 3. Of का मतलब maths में माना जाता है multiply. So you can write it here 3 by 2 into 5 by 3. So what is the rule? Numerator will multiply with numerator, denominator will multiply with denominator. 3 into 5, 2 into 3. 5 3s are 15, 3 2s are 6. Simplify it. जो नंबर इन दोनों को कट कर सकता है, जो इन दोनों की टेबल में आता है, वो है 3. तो 3 2s are 6, 3 5s are 15. एंड कट करते साथ सिंप्लीफिकेशन हमारा नंबर क्या आ गया? 5 by 2. Now very important thing, multiplicative inverse. So अगर किसी भी नंबर का multiplicative फ्रैक्शन का multiplicative inverse हमें निकालना होता है, तो 3 by 2 का multiplicative inverse क्या होगा? 2 by 3. हमने मैथ्स में एडिशन में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, जो कि जहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्लस 22 by 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 by 3. बट मैथ्स मल्टीप्लिकेशन में हम ये पढ़ेंगे कि 2 by 3 का ये हमारा एडिटिव इनवर्स था. एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है. बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 by 2. तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ. तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन आस्क इन द MCQs और fill in the blanks कि what is additive inverse of this? तो additive inverse you have to change the sign. What is multiplicative inverse of this? You have to change. सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 by 7, तो व्हाट इज द आंसर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 by 7 इज 7 by 5. तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 by 7. सॉरी, आई विल राइट इट हियर. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 by 7 इज 7 by 5. दिस इज योर आंसर. सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन आया व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 by 5, सो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस -3 by 5 is +3 by 5. So this is the way to present your answer in your copy. Now after this you will solve all examples whatever your question book is having from page number 26, 27, example 7, 8, 9, 10, 11, 12 till 15. You have to solve all examples in your copy. Now I am going to explain you exercise 2.2. First question is saying represent diagrammatically 2 into 2 by 3 is to 1 is to 1 by 3. So 2 by 3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. यू नो दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. तो व्हाट इज योर फ्रैक्शन पार्ट? दैट इज 2 by 3. सो 2 by 3 को 2 बार लिखना है. सो तीसरी हमने ये 2 by 3 यानी कि 3 फ्रैक्शन है और उसको हमने डिवाइड किया. इस 3 को 2 by 3 को हमने 2 बार लिखा क्योंकि उन्होंने बोला 2 by 3 को 2 बार लिखो. एंड आंसर क्या आ रहा है? 1 is to 1 by 3. 1 is to 1 by 3 क्या होता है? 1 is to 1 by 3 इज इक्वल टू होता है होल नंबर और 1 by 3. तो होल नंबर जिसमें सारे शेडेड होंगे एंड देन 1 by 3 जिसमें एक ही शेड होगा 3 पार्ट में. So you can solve all questions with the help of this example. Whatever I have told you, you have to solve all 3 questions in your copy. Now second question is multiply and write the following the simplest form. I will tell you 2 examples from this. Number 1 A I will tell you and then I will tell you F only. Then after that you have to solve all questions from yourself. See first A part.
2 इंटू 3/4 हमने भी पहले भी पढ़ा था कि जब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3/4, 6/4 सिंप्लीफाई किया। जो इन दोनों को कट करेगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी आंसर इज 3/2। अनदर क्वेश्चन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। सो 4 इंटू 5 इज टू 1/2। पहले हम इस मिक्स को चेंज करेंगे अपने प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11/2। हमें पता है इसको कैसे चेंज किया जाता है। 4 इंटू 11/2, 2 ने इसको कट कर दिया, देन आंसर आया 22। अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 3, दैट इज आई विल टेल यू ओनली वन ऑफ दिस। इन्होंने बोला फाइंड ए पार्ट है इसका, फाइंड 1/4 ऑफ। इतने सारों का ऑफ निकालना है आपको। आई विल टेल यू ए, रेस्ट यू विल डू बाई योर सेल्फ। सो 1/4 ऑफ 24, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया 1/4 इंटू 24 एंड देन 4 ने 6 को कट किया, 4 6 ज़ा 24। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर सकता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कट कर सकता है, मगर तभी कट कर सकता है जब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, उसके अलावा वो नहीं कट करेगा। सो 4 6 ज़ा एंड देन आंसर इज 6 1 ज़ा 6। सो रेस्ट यू विल सॉल्व। एंड सिमिलरली बी पार्ट इज ऑल्सो सेइंग 5/6 ऑफ 20 24 इतना। ये अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो एंड देन आई विल सेंड यू, बट पहले आप लोग सॉल्व करिए इसको, ठीक है, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। तो 5/6 ऑफ 20, देन 5/6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20, 5 इंटू 20/6। ना आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सो 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा कट गया, 5 10 ज़ा 50/3। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर आप इट्स योर चॉइस, यहाँ पे मार्क्स नहीं कट होंगे। नाउ अनदर लैंग्वेज क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। Ventrika compiled 5/6 of her homework on Saturday. How much homework he is left to complete it on Saturday? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरा काम कितना होता है, 1 होल नंबर, होल इज ऑलवेज 1। तो लेट वर्क इज 1। सैटरडे शी कंप्लीटेड 5/6, तो लेफ्ट वर्क कितना हुआ? यस, लेफ्ट वर्क कितना हुआ हमारा? 1 - 5/6, यानी पूरे काम से 5/6 हमारा कट हो गया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे 6 1 ज़ा 6 -5, यानी कि 1/6 काम हमारा अभी भी छूटा हुआ है जो उसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सिंपल डे टू डे लाइफ, आप लोग भी बॉटल लाते हो, कोई पानी पी लेता है, कितना पानी बचा है, दैट वी विल कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सी वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो आधा आंसर तो वही क्वेश्चन बता देता है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। ओके, देयर मदर गेव देम वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि वो बॉटल में 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, यानी 2/5 फ्रैक्शन 2/5, 5 का उसने पी लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। क्वेश्चन इज आस्किंग 2 थिंग, how much water Vidya drink, what fraction of total quality of water did Pratap drink। so language form में जब हम बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना पानी था। we know that जो बॉटल थी वो कितने की थी, 5 लीटर की। विद्या ने कितना पिया, 2/5 ऑफ 5, यानी कि 2/5 इंटू 5, 5 कट गया। 2 लीटर पानी कौन पी चुका है, विद्या पी चुकी है। अब इमीडिएटली यू कैन फाइंड द रिमेनिंग वाटर, कितना बचा, 5 - 2 यानी कि 3L, 3 लीटर पानी बचा है। अब प्रताप ने कितना पिया, होल का 3 लीटर, यानी कि फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/5 ऑफ वाटर प्रताप टैंक। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नाउ टुडे इज होमवर्क। फर्स्टली यू विल राइट डाउन रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको पिक्चर में भेजा हुआ है, multiplication rule you will write down in the copy. After that you will solve examples in the copy, and then you will solve this exercise 2.2 in your copy fully. Thank you.